गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल आपका सेशन नहीं हो पाया था बिकॉज कुछ रीशेड्यूलिंग में प्रॉब्लम थी। एक क्लास 8 बजे थी, दूसरी क्लास 8:30 बजे थी, तीसरी क्लास 9:30 बजे थी। सब क्लासेस एक दूसरे के साथ में ओवरलैप हो रही थी और बिकॉज टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के चलते मैं उसको ट्राई कर रही थी कि काम हमारा शाम तक हो जाता। अगर वो रिज़ॉल्व तो मैं आपकी क्लास ले लेती, लेकिन दिक्कत ये हुई कि वो रिज़ॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड। सो मैंने आपकी क्लास के टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली कल तो नहीं रखी, लेकिन आगे चेंज किए हैं। तो मैं आपको ऑन अ डेली बेसिस या तो बताती रहूँगी आपकी जब भी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, एंड प्रोबेबली आने वाले दिनों में आपकी 2 क्लासेस पर डे रहें। आज तो नहीं है, कल होगी, लेकिन प्रोबेबली रहेगी। ठीक है, विल सी कैसा होता है। 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी आपकी, सो नो इश्यूज़। बाकी कुछ मैं 3 सेशंस ऐड करने वाली हूँ, जस्टिस वाला और मैंने आपको बताया था ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी वाला, तो उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। हम थ्योरी शुरू कर रहे थे और थ्योरी में हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा था, हम रियलिज्म पढ़ रहे थे। तो मैं इस क्लास में रियलिज्म का टॉपिक ही कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, वही मैं कंटिन्यू करूँगी अभी आज। बाकी सबको भी ज्वाइन करने दीजिए, उसके बाद सेशन शुरू करेंगे। एक्चुअली मैं सुबह से क्लास ले रही हूँ 7:30 बजे से उठ के, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेके क्लास कवर करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारी क्लासेस लेनी है। कल हुई नहीं थी, पुराना मेरा तबीयत की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, दैट्स वाई। ठीक है, लेट मी टर्न ऑन द फैन। सुबह से फैन भी नहीं चलाया। अच्छा, एक टाइम देख लेती हूँ मैं, 9:30 से 11। ग्यारह है, फिर 11 से ये इतने बजे है क्लास। वेट, आई एम जस्ट कमिंग। रिफ्रेश करने दीजिए एक बारी। आई एम कमिंग।
Yes. So sorry. Actually, when I woke up at 7:30, na, directly I was taking classes till 9:30. So it is because of that I did not get even time to brush, and so I was not feeling very fresh. Finally, I'm okay. So we'll continue with the session now. Okay. Thank you so much for the patience and waiting. It is because I have to take a lot of sessions without any gap. This is happening. There's not even a half an hour break between the sessions. Okay. So we'll start with realism. And in realism, you have watched the previous session. Are you aware about the classical realism? I'm considering that you guys have watched it. Okay. So we will start with now realism. Under that, there are four schools that we have discussed. And the first school was classical realism. We have gone for the first school, which is classical realism. Classical realism by Morgenthau. This we have completed. Okay. Second thing, we started with structural realism. And I told you that classical realism has focused more on the actor level analysis, whereas structural realism will focus more on structure level analysis, where they believe that structure of the international politics is anarchy. Structure is anarchy, and based upon this, therefore, there are two schools in structural realism. First is defensive realism, given by Kenneth Waltz, who believes that a country should go for balance of power in everything up to an extent that it is sufficient for their defenses. That means up to the there is some limit, at least in this case, which is required for the defensive purposes, not for the offensive, not for attacking, not for unlimited expansion of army or everything, not for unlimited expansion of power, but offensive realism, which is given by Meir Shimmer. Meir Shimmer, who belongs to offensive realism, is also structural realist. He is also going to, just like Kenneth Waltz, shift from the actor level analysis that was there in classical realism to the structure level analysis. Meir Shimmer is actually a post Cold War realist. Post Cold War realist means he is a person who belongs to, after 1990s, he has given all his theories. In fact, there is one book that Meir Shimmer has written. The name of the book was Tragedy of Great Power Politics. This book was published in 2001, and he is going to put a question mark on the status of realism as a timeless wisdom. He is going to resolve that question mark. Why? After this end of Cold War, right? Realists have predicted that Cold War will never end. There will be continuous. We'll see this, you know, opposition continuously. We'll see that USA and USSR will keep on fighting against each other. There will be always two power blocks for the rest of the history. This is what realists believe. But with the end of Cold War, with the disintegration of USSR in 1990s, liberalism will win the ideological battle. And this is what we see in terms of international politics also. The liberal or the ideal school of international politics will win this rather than the realist school. And therefore, there was a big question mark on the status of realism, whether realism is applicable in all times, in all periods, like in future or at any point of time in history. So that came under question. There was a question mark whether it is a timeless wisdom or not. But he said that
That is because, why this has happened, because after the end of Cold War, we'll see that there will be a growth in cooperation between Russia and USA. There was an increase in the international organization. A lot of organization came, regional institutions came, such things happened, right? Yes, you guys are able to listen to me. Any difficulty that you are facing right now, please let me know, because it is getting refreshed from my side again and again. So I just want to know whether you are facing any difficulty. Okay, so what I was saying, that basically in this context, Mir Shimmer is going to deal with this dilemma whether realism is a timeless wisdom or not. And you know, one of the biggest achievement of this liberal idea was the formation of WTO in 1995, because USA has been trying to establish, uh, a platform to determine the rules for international trade since 1945, since the Bretton Woods organization. It's a conference, sorry. Type of institution could not come up, okay? And later on in 1995, this will come up. This was a big achievement for the ideal school of international politics. And because of this, now countries will start growing interdependent on each other. So cooperation will start happening. It is because of these ideas there was a big question mark. So it was Mir Shimmer who actually established this, that no, realism is still effective, where he is going to focus on. He establishes the relevance of realism by focusing on the uh, you know relations between US and China, future relations between US and China, where he warned USA of, where he warned the American scholars of their fantasy on US China cooperations. Because we will see that US China was cooperating with each other. अच्छा हाँ, so sorry. आई एम सो सॉरी. मैं सुबह ना एक्चुअली उमंग इंग्लिश वाली क्लास पढ़ा रही थी ना, तो मुझे वही चीज दिमाग में रह गई. आई एम रियली सॉरी. मैं दोबारा से पढ़ाती हूँ इसको, ठीक है? हिंदी में बता दो दोबारा से. कितनी देर से समझ ही नहीं, आपने पहले क्यों नहीं बोला? मेरे दिमाग से निकल गया. आई वाज टेकिंग द होल सेशन इन इंग्लिश, और आप ना बोलते तो मैं पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाती. दिमाग से निकल गया. सो सॉरी. हिंदी की क्लास है. हाँ, तो क्लासिकल रियलिज्म हमने पढ़ा था उमंग. मॉर्गन दाउ का याद है आपको? मॉर्गन दाउ ने बोला था कि एक्टर लेवल एनालिसिस पे ध्यान देना चाहिए. मतलब जो लीडर है वो डिसाइड करेगा. लीडर पावर सीकिंग होता है, पावर अपने हाथ में लेनी होती है. तो पावर सीकिंग होता है, इसीलिए स्टेट को रन करते हैं लीडर्स. तो स्टेट भी पावर सीकिंग होती है, ये बोलते हैं. फिर आगे आया स्ट्रक्चर लेवल रियलिज्म. स्ट्रक्चर रियलिज्म दिया था केनेथ वॉल्ज और मियर शिमर ने. दो अलग अलग स्कूल्स हैं इसी के अंदर. स्ट्रक्चर में क्या हुआ, पहले क्लासिकल रियलिज्म में एक्टर पे ध्यान दिया गया था. जैसे इंदिरा गांधी और नेहरू अगर डिसीजन लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू मॉर्गन दाउ, इंदिरा गांधी अलग टाइप का डिसीजन लेंगी और नेहरू अलग टाइप का डिसीजन लेंगे. लेकिन दोनों ही पावर सीकिंग होते हैं, क्योंकि मैन पावर सीकिंग है. तो एक्टर लेवल का एनालिसिस ज्यादा मैटर करता है, ऐसा मॉर्गनडाउ ने बोला, और उस पे उन्होंने रियलिज्म को बेस किया. लेकिन हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि आगे जाकर के केनेथ वॉल्ट स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे. ये बोलेंगे कि एक्टर तो देखो जो होता है, ह्यूमंस होते हैं. ह्यूमंस को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है. ह्यूमंस आज कुछ और बात बोल रहे हैं, कल को अपनी बात से पलट जाएंगे. तो ये चीज तो समझी ही नहीं जा सकती ह्यूमंस के बारे में. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, हम अपनी मेथडोलॉजी को, कि रियलिज्म को हम ह्यूमन एनालिसिस पे बेस नहीं कर सकते. रादर, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो है एनार्की. एनार्की का मतलब कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है, कोई सरकार नहीं है संभालने वाली, एक्शन लेने वाली. ये क्या करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ में कंपेयर करते हैं. देखो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगर लगाओगे एक कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है. हर एक गवर्नमेंट है, जुडिशरी बैठी हुई है, पुलिस भी है, साथ में एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, सब चीजें हैं.
तो सबका अपना एक रोल है, रेगुलेट करके रखते हैं वो सब सब चीजें, इसीलिए भी स्टेबिलिटी बनी रहती है कंट्री के अंदर। लेकिन जब भी हम बात करते हैं इसकी क्या नाम है स्ट्रक्चर की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो वहां पर तो कोई अथॉरिटी है ही नहीं। अब आप बोलोगे कि यूनाइटेड नेशन है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के डिसीजंस बाइंडिंग नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने कोई डिसीजन लिया और दूसरी कंट्रीज ने फॉलो नहीं किया, तो क्या हम दूसरी कंट्री को पनिश कर सकते हैं उसके लिए? नहीं कर सकते, बाइंडिंग नहीं है। ये दिक्कत है कि यहाँ पर एनार्की है, कोई ऐसी कॉमन अथॉरिटी है ही नहीं जिसके पास में पावर हो, सही मायने में पावर। और तो केनेथ वॉल्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एनार्की है इसीलिए सभी कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन केनेथ वॉल्स कहते हैं कि सिर्फ उस लेवल तक अपनी पावर को इंक्रीज करो जिस लेवल तक सफिशिएंट है कि आप इतनी पावर जब इंक्रीज करोगे, अगर कोई दूसरी कंट्री आपको अटैक करती है तो आप उसको उस अटैक से बचा पाओगे अपनी कंट्री को। सिर्फ उतनी लेवल तक करो, मतलब सिर्फ डिफेंस पर्पस से, मतलब सिर्फ डिफेंस पर्पस से करो, ये कहना था केनेथ वॉल्स का। लेकिन मियर शिमर का क्या कहना है? मियर शिमर का कहना है कि पावर को अनलिमिटेड एक्सपैंड करो, मतलब कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, इतनी एक्सपैंड करो कि कोई चैलेंज ही ना कर पाए। तो एक तो है डिफेंसिव, जो बोलते हैं सिर्फ डिफेंस के पर्पज से पावर को इंक्रीज करो सिर्फ उतनी लिमिट तक। एक है ऑफेंसिव, कि जितनी हो सके उतनी करो, अनलिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ पावर। तो मियर शिमर ने ये अपना आइडिया दिया था। लेकिन मियर शिमर है कौन? मियर शिमर एक पोस्ट कोल्ड वॉर रियलिस्ट है। पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था 1990 में, शीत युद्ध जब खत्म हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी डोमिनेंट हो गई। अमेरिका का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के जो आइडिया है वो आइडियल स्कूल में आता है। आइडियल स्कूल का मतलब है लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है? तो उसमें आता है। तो हम देखते हैं कि अमेरिका ने उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर में डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो अमेरिका डोमिनेट हो गया। और ये भी रीजन था कि आइडियल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डोमिनेट हो गया, मतलब उनके आर्ग्यूमेंट ज्यादा अच्छे अब हो गए, क्योंकि एक बार डिसइंटीग्रेशन हुआ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई। इनफैक्ट सबसे बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट तो ये था, डब्ल्यूटीओ का जो इंस्टीट्यूशन है, डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए 1945 से कोशिश कर रहा है, 1945 से कोशिश कर रहा है यूएसए कि डब्ल्यूटीओ आए। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस नाम है उसका, यही डिसाइड करने के लिए कि सारे देश आए और आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करें, अपने इकोनॉमी को ओपन करके बॉर्डर्स को ओपन किया जाए कि कोई भी देश किसी भी देश में सामान अपना बेच सके। कोशिश कर रहा था, लेकिन ये फाइनली कब पॉसिबल हुआ? 1995 में, 50 सालों के बाद 1995 में जाके डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश हुआ। तो ये बिगेस्ट अचीवमेंट थी। तो ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद में रशिया बना, और रशिया ने वही सब पॉलिसीज फॉलो की जो यूएसए पॉलिसी कर रहा था। डेमोक्रेसी लाई, रशिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, रशिया यूएसए के साथ में कोऑपरेट करने लगा। तो बहुत सारे जो रियलिस्ट हैं वो ये मानते थे कि हमको यू नो इनका मानना था कि कभी खत्म ही नहीं होगा, शीत युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा एक साइड यूएसए रहेगा, दूसरी साइड यूएसएसआर रहेगा, पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड रहेगा और टेंशन्स बनी रहेंगी। और ऐसा होता है तो बैलेंस ऑफ पावर भी मेंटेन करनी पड़ेगी। दो टाइप से बैलेंस कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो? एक इंटरनल बैलेंसिंग, अपनी कंट्री के अंदर में ही आप अपनी आर्मी को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करो आर्मी में और ट्रेन करो उनको। और एक होता है एक्सटर्नल बैलेंसिंग, दूसरी कंट्रीज के साथ में आप अलायंस
साइन कीजिए। ये माना जा रहा था, लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो सब जगह दिखने लगा कि सारी कंट्रीज मिलकर के आपस में कोऑपरेट कर रही हैं, जिसके चलते बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, डब्ल्यूटीओ आई, बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए, कन्वेंशंस आ गए 90s में, जैसे अर्थ रियो समिट हुई थी, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितने सारे कन्वेंशंस हुए, ये सभी स्टार्ट होने शुरू हो गए। तो जब ये सब हो रहा था तो अब रियलिज्म पे आया बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि आप तो बोलते थे कि रियलिज्म चाहे कभी भी अप्लाई कर लो, रियलिज्म हमेशा रहेगा, मतलब कंट्री को हमेशा अपनी पावर को एक्सपैंड करने पे ध्यान देना होगा, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखना होगा, चाहे कभी भी कर लो, फ्यूचर में, पास्ट में, कोई एग्जाम्पल उठा लो। आप तो बोलते थे रियलिज्म इज द टाइमलेस सिस्टम। टाइमलेस मतलब कि एक टाइम के पीरियड में बंधा नहीं हुआ है, हमेशा रियलिज्म एग्जिस्ट करता है, यानी एक कंट्री को हमेशा ही अपनी पावर पर रिलाई करना चाहिए। ये तो क्वेश्चन में आ गया, क्योंकि अब कंट्री अपनी पावर पर रिलाई नहीं कर रही, आपस में दूसरी कंट्रीज के साथ में कोऑपरेट करके इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बन रही हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बन करके ऐसी कंट्रीज कितना ज्यादा वो कर रही हैं अपना, यू नो, लाइक कोऑपरेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ में, तो पावर नहीं इंक्रीज कर रही, तो अपनी आर्मीज पे ज्यादा ध्यान ना दे करके मिलिट्री अलायंसेस बनाए जा रहे हैं कि हमारी भी कुछ आर्मी है, आपकी भी है, इनकी भी है, तो सारे पे मिल करके हम स्ट्रांग हो गए। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आ रहा था उस टाइम पे। ये भी रीजन था कि मियर शिमर ने इसको आंसर किया, जिसमें मियर शिमर ने ये चीज हाईलाइट करके हमको बताई कि देखिए, ही हाईलाइटेड दिस थिंग कि जो फ्यूचर में 2001 में इनकी बुक आई थी, बुक का नाम था इनकी, यू नो, दिस, यू नो, मियर शिमर वाज अबाउट दिस थिंग कि यूएस चाइना के रिलेशंस को इन्होंने हाईलाइट किया था अपनी बुक में, तो इनकी बुक का नाम रहेगा ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो इसमें इन्होंने यूएसए के जो अमेरिकन स्कॉलर्स थे, जो आइडियल स्कूल इनका डोमिनेट हो गया था कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में, तो ये तो बड़े खुश थे कि हाँ हमारे आइडियाज ही रहेंगे, अब यूएसए की हेजेमनी रहेगी हमेशा से, जैसा यूएसए चाहता था, इससे यूएसए को बहुत फायदा होगा। लेकिन मियर शिमर ने बोला कि रियलिज्म अभी भी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जो आप यूएस से जो चाइना के साथ में कोऑपरेट कर रहे हो, आप आगे जाकर के चाइना ही आपकी हेजेमनी को चैलेंज करेगा, तो आप जो कोऑपरेशन कर रहे हो, आगे आपको चाइना के साथ में बैलेंस ऑफ पावर का गेम दोबारा से खेलना पड़ेगा। तो इन्होंने पहले ही वार्न कर दिया था इस बात में, और हमने देखा कि ये चीज सच भी है आज के टाइम पे, इट इज विजिबल नाउ। चाइना आज यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। इनका कहना था कि यूएसए बहुत ही बड़ी गलती करेगा, यूएसए ने बहुत बड़ी गलती कर दी, फुलिशनेस कर दी, यूएसए ने पागल बन गया यूएसए, जब यूएसए ने चाइना को इतना मतलब सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से ही तो चाइना राइज हुआ। अगर यूएसए ना करता तो चाइना उस हिसाब से राइज ना होता, चैलेंज ना कर पाता। इन्होंने बोला यूएसए इट वुड बी फुलिश, ये भी चीज खराब होगी कि अगर यूएसए चाइना की राइज को लेकर के ये सोच रहा है कि चाइना तो पीसफुली ग्रो कर रहा है और चाइना पीसफुल रहेगा हमेशा। चाइना एक्सपेंशनिस्ट है, चाइना का जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है चाइना का अल्टीमेट, तो चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योरिटी नहीं है। आपको क्या लगता है चाइना राइज कर रहा है? चाइना के प्रेसिडेंट है ना, चाइना के प्रेसिडेंट बोलते हैं ऐसा
कि हम लोग अगर राइज कर रहे हैं तो हम तो सिक्योरिटी के लिए राइज कर रहे हैं, हम तो सिक्योरिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं कि यूएसए और चाइना मिल करके साथ में पूरे कंट्री को, पूरे ग्लोब को सिक्योर करेंगे, क्योंकि दोनों ही मेजर पावर्स होंगे, ऐसा कहना है चाइना का। लेकिन इन रियलिटी मियर शिमर ने हाईलाइट किया कि चाइना का पर्पस सिक्योर करना नहीं है ग्लोब को, चाइना का पर्पस है एक्सपैंड करना। चाइना एक्सपेंशनिस्ट पावर है, चाइना का पर्पस है डोमिनेट करना इस पूरे वर्ल्ड में। तो स्टेट यहाँ पर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर नहीं है। सिक्योरिटी स्टेट जो होता है, जैसे यूएसए ने बोला कि स्टेट सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर होता है, सारे स्टेट मिलकर के सिक्योरिटी मेंटेन करके रखते हैं। उसी में चाइना भी ऐसा ही करेगा, सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करेगा कंट्री में। स्टेट सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर नहीं है, स्टेट पावर मैक्सिमाइजर है। स्टेट पावर अपनी मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसा करता है। इसीलिए इन्होंने सजेस्ट किया कि यूएसए को चाइना को कंटेन करना चाहिए टाइम रहते हुए। द सूनर द बेटर इट इज, जितनी जल्दी कंटेन करोगे उतना बेहतर है। अंडरस्टूड। तो इन्होंने बताया कि देखो आज के टाइम पे चाइना और यूएसए के बीच में का जो गैप है कितनी जल्दी खत्म हो रहा है। चाइना एक टाइम पे जीडीपी वाइज कितना पीछे था, और परचेजिंग पावर पैरिटी में आज चाइना यूएसए से भी आगे है, और बहुत जल्दी जीडीपी में भी, नॉमिनल जीडीपी में भी चाइना पहले नंबर पे होगा। तो ये जो गैप है यूएसए और चाइना का बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। हिस्ट्री में किसी और कंट्री का आप ऐसे एग्जाम्पल ले ही नहीं सकते जैसा एग्जाम्पल चाइना का है। पिछले 2 दशक में, पिछले 2 डेकेड्स में जो चाइना ने ग्रोथ दिखाई है कि यूएसए से भी आगे आ गया, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है। चाइना ने ऐसा नहीं है सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में, मिलिट्री के टर्म्स में, सभी डायमेंशंस में काफी ग्रोथ दिखाई है चाइना ने। इनफैक्ट नेपोलियन ने एक बार बोला भी था चाइना के बारे में कि एक बार अगर चाइना इन सभी, जो चाइना में स्लम्बर चल रहा है, जो चाइना में इतना गरीबी और ये सब चीजें हैं चाइना में जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, एक बार अगर उन प्रॉब्लम से उभर गया चाइना, तो चाइना पूरे वर्ल्ड को एस्टॉनिश कर देगा, ऐसा नेपोलियन ने भी बोला था। जो कि हम देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में, पिछले 2 दशक में क्या किया है चाइना ने। तो इसीलिए मियर शिमर ने अपनी थ्योरी में ये कहा कि यूएसए को एक्शन कौन सा लेने की जरूरत है। इन्होंने 3 एक्शन सपोर्ट किए, मतलब 2 टाइप के एक्शन थे जिसमें 3 मेथड सपोर्ट किए, 4 मेथड एक्चुअली, 4 या 5 आप बोल सकते हो। पहला था, इन्होंने बोला कि यूएसए को डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए चाइना के अगेंस्ट में, और इनडायरेक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन का ऑप्शन क्या रखा इन्होंने, इन्होंने बोला कि यूएसए डायरेक्ट एक्शन में क्या कर सकता है। यूएसए के पास में 2 मेथड है डायरेक्ट में। पहला मेथड है कि या तो यूएस डायरेक्टली वॉर करे चाइना के साथ में, वॉर करेंगे, लेकिन अगर हम लड़ाई करते हैं सीधा तो इफेक्टिव होगी, चाइना को हरा सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई करने में पैसा बहुत जाएगा। यूएसए ने ऑलरेडी अफगानिस्तान में, इराक में, इधर उधर जहाँ पे भी वॉर की कितना पैसा गवाया है, टैक्स पेयर्स का पैसा कितना यूज हुआ मिलिट्री में, आर्म्स डीलर्स के पास में। इफेक्टिव होगा लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा ये यूएसए को। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट का वॉर। दूसरा है या तो डायरेक्टली ब्लैकमेल करो चाइना को। अब आप ब्लैकमेल करते हो, ये पैसा इसमें कुछ खर्च नहीं होगा ब्लैकमेल करने से, कि हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, हम आपके प्रोडक्ट्स कोई देश नहीं खरीदेगा। ब्लैकमेल ऐसे कर सकते हो कि सभी देश को बोल दो कि अगर आप उसके साथ में, चाइना के साथ में डील करते हो, वहां से कोई भी सामान खरीदते हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो,
तो आप पे भी सैंक्शंस लगेंगे। बाकी सभी जो देश यूएसए के साथ में खड़े हैं वो भी सब सैंक्शंस लगाएंगे, आप उनकी कंट्री में नहीं भेज पाओगे, फिर आप बस चाइना के ऊपर ही रिलाई करोगे। तो ब्लैकमेल किया जा सकता है, ब्लैकमेल से यूएसए का कोई खर्चा नहीं होगा इसमें, लेकिन ये काम नहीं करेगा। हम देखते हैं कि सैंक्शंस का मेथड तो काम ही नहीं करता। सैंक्शंस तो फिर रशिया पे भी लगाए हुए हैं। 2014 के बाद से, जब से क्रीमिया ऑक्यूपाई किया है रशिया ने, सैंक्शंस तो है उस पे, ईरान पे भी है। इतना इफेक्टिव नहीं है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि ईरान में दोबारा से न्यूक्लियर जो फिजाइल मटेरियल था पाया गया। तो ये दो है वॉर और ब्लैकमेल, दो वेज हैं जो डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। या फिर यूएसए इनडायरेक्ट एक्शन ले सकता है, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर के इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट में कौन कौन सा रहेगा? पहला मेथड बोलता है बैक पासिंग। बैक पासिंग मतलब अपना जो बर्डन है दूसरे की पीठ पे लाद दो। आपको चाइना को कंटेन करना था, यूएसए को, लेकिन आप क्यों करो? आपको तो पैसा लगेगा या आप पे मतलब काम नहीं करेगा आपके हिसाब से। ट्रेड वॉर नहीं, ट्रेड वॉर बैक पासिंग नहीं हुआ। इंडिया को सपोर्ट, उमंग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ट्रेड वॉर किस में आएगा विश्वजीत? ब्लैकमेल में आएगा। काम कर रहा है क्या ट्रेड वॉर? इतना अच्छे से तो काम नहीं कर रहा है। चल ही रही है तब से। अगर इफेक्टिव होता तो ट्रेड वॉर एक महीने के अंदर अंदर चाइना घुटने टेक देता कि अरे ठीक है हम नहीं करते, छोड़िए छोड़िए हम कुछ नहीं करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव काम नहीं कर रहा ना, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। पैसा इनका खर्च नहीं हो रहा ट्रेड वॉर करने में यूएसए का। इनफैक्ट यूएसए का ही फायदा है ट्रेड वॉर करने में। तो क्यों? क्योंकि यूएसए को फिर चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे, इस हिसाब से इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो यूएसए की इकोनॉमी को फायदा। वैसे भी ट्रेड डेफिसिट है यूएसए के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, उसके जो अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनमें फायदा। लोगों को फायदा हो ना हो, इकोनॉमी को तो फायदा हो ही रहा है। तो बैक पासिंग का मतलब होता है कि अपना बर्डन दूसरे पे शिफ्ट कर दो। जैसे यूएसए ने अपना बर्डन इंडिया पे शिफ्ट कर दिया, इसीलिए भी इंडिया को आइडियल स्विंग स्टेट माना जाता है। ठीक है, वेट अ मिनट। हेलो। हाँ, अरे यार तेरे को कॉल किया था, तुझे उठाया ही नहीं। तुझे बोला था आरसी और उसकी मुझे फोटो भेजियो। नहीं, पापा से मेरी बात नहीं हुई है, और मैं अभी क्लास ले रही हूँ एक्चुअली। हाँ। हम्म। वो तो पहले देनी दी थी। तो ऑफिस से मिला नहीं डॉक्यूमेंट? अच्छा, मैं आईडी और फोटोग्राफ्स, राइट? अच्छा अच्छा। हम्म। मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ, नो इश्यूज। रुक जा। और फोटो वाली भी मुझे भेजनी पड़ेगी। ठीक है। स्कैन फोटो वाली मतलब फोटोग्राफ्स भेजनी है ना, पासपोर्ट साइज? हाँ, तो वो मेरे पास पड़ी है, भेज दूंगी मैं। तो पहले मुझे पापा वाली आर्ट्स मैं भेजूंगी, अभी क्लास खत्म करके भेजूंगी। ठीक है, राइट नाउ सुमित, आई एम इन द क्लास। मैं अर्जेंट है इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। अभी तो मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर वो भेज दे, आरसी और आधार और पैन कार्ड की फोटो। ठीक है, और क्लियर भेजियो और व्हाट्सएप करते हैं। ओके। ओके। नहीं, बैक पासिंग बोलेंगे उसको हम। ठीक है, बैक पासिंग, अपना बर्डन दूसरे पे डाल दो। तो इंडिया इसीलिए भी बोला जाता है कि इंडिया एक आइडियल स्विंग स्टेट है। इंडिया पर डाल दो बैक पासिंग। ठीक है। नहीं, लाइसेंस भी है, एंड
there are other things also. Actually, there was a bike that my brother has bought on my name. तो वो सेल की है उसने, उसके बाद उसने गाड़ी खरीद ली, तो ये दिक्कत थी। तो वो सेल करनी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। बाकी आई एम ट्राइंग टू परचेज अ न्यू कार, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। तो होपफुली आज खरीद लूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा चाहिए था, बिकॉज डिस्काउंट वगैरह मिलता रहता है ना उस पर। पुरानी जो आपके कार्स होती हैं उस पर लाइसेंस वगैरह रहता है आई थिंक। नहीं, आरसी का दिखाओगे तो डिस्काउंट मिल जाता है अगर घर पे किसी के पास में हो, तो दैट्स द थिंग। तो वो हो जाता तो ही, इसीलिए भी मैंने शाम को कोई क्लास नहीं रखी है। प्रोबेबली आई एम गोइंग टू डू दैट। इस सब में भी बहुत कंफ्यूजन रहती है। ओके, क्योंकि बीमार वगैरह रहते हैं, फिर आपको पता ही है कि ट्रैवल करने में थोड़ा दिक्कत रहती है मुझको। तो आई एम ट्राइंग टू परचेज अ न्यू कार फॉर माई सेल्फ। चलिए, तो ये है बैक पासिंग, ठीक है। बैक पासिंग का इसमें क्या रहेगा, आप अपना बर्डन दूसरे पे शिफ्ट कीजिए। जैसे यूएसए ने अपना बर्डन इंडिया पे शिफ्ट कर दिया, क्लियर, इंडिया पे शिफ्ट कर दिया, सो दैट इज बैक पासिंग। एक और मेथड इन्होंने इनडायरेक्ट बताया, वो है बेट एंड ब्लीड का। बेट एंड ब्लीड मतलब आपको करना क्या है, एक कंट्री को सपोर्ट करो दूसरी कंट्री के मुकाबले, और दोनों कंट्रीज ताकि आपस में लड़ भिड़ करके खून खराबा होता रहे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि दोनों ही कंट्रीज रीजनल पावर के फॉर्म में उभर के नहीं आएंगी। जैसे एशिया में चाइना ग्लोबल पावर तब बनेगा, अभी भी चाइना ग्लोबल पावर नहीं है। चाइना ग्लोबल पावर तब बनेगा जब चाइना रीजनल पावर बनेगा, और रीजनल पावर बनने के लिए चाइना को सिर्फ एक ही कंट्री उसको चैलेंज कर सकती है, वो है इंडिया। तो इंडिया के साथ में फाइट करनी पड़ेगी, इंडिया को कंटेन करना पड़ेगा चाइना को। ऐसे ही इंडिया को रीजनल पावर अगर बनना है तो चाइना को कंटेन करना पड़ेगा, एशिया पावर बनना है, एशियन पावर। तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि दोनों को आपस में लड़वाओ, टेंशन क्रिएट करके रखो ताकि दोनों इसी में इन्वॉल्व रहें और कोई भी पावर ना बन पाए रीजनल पावर। क्योंकि एक बार अगर कोई कंट्री रीजनल पावर बन गई तो उसको ग्लोबल पावर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आया समझ? चाइना अभी एशियन पावर नहीं है, चाइना इज वन ऑफ द एशियन पावर रश्मि, वन ऑफ। मतलब एक तो इंडिया है काफी प्रोमिनेंट, एक चाइना है, और एक रशिया भी काफी प्रोमिनेंट है इस टाइम पे। हालांकि रशिया चाइना को उस हिसाब से नहीं कर सकता चैलेंज जिस हिसाब से इंडिया कर सकता है। क्यों? क्योंकि रशिया पे तो सैंक्शन है 2014 से, तो रशिया तो इकोनॉमिक वाइज और वो सब तो नहीं कर सकता। तो इसीलिए इंडिया को ही माना जाता है पोटेंशियल इसका चैलेंजर चाइना का। हालांकि रशिया भी कहीं पर है, ठीक है, दोनों की दोस्ती भी पुरानी है, लेकिन रशिया और चाइना की इतनी बनती नहीं है। अभी दोबारा से सही हो गई है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि रशिया खुद बहुत बड़ा मतलब गेम खेल रहा है। रशिया चाइना के साथ में कहीं ना कहीं खड़ा रहता है। एट द सेम टाइम रशिया को पता है कि अगर हमने मतलब यूएस से अगर इसको हट गया यहाँ से और चाइना बन गया तो रशिया और चाइना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट बॉर्डर टच होता है ना इनका। वो देखो ना कि ज्योग्राफी वाइज कितने पास है। यूएसए तो फिर भी दूर है, रशिया और यूएसए में ज्यादा फिर भी डिफरेंस है बीच में, एक सी आ जाती है, डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है। रशिया और चाइना तो बहुत ही क्लोज है, और चाइना इतना एक्सपेंशनिस्ट है तो करते करते क्या पता पूरा रशिया भी अपने ऊपर कर ले, ठीक है। चाइना में ऐसा क्या है कि वो इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं? रश्मि, आपने लेसन नहीं देखा है? डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का हमने एक लेसन लिया था जिसमें मैंने बताया था, एक थीसिस थी जिसमें चाइना में देखो सबसे पहली चीज अथॉरिटेरियनिज्म है चाइना में। मतलब चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, जिसके चलते चाइना में अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है ना लीडर्स को, अगर वहाँ लीडर्स चाहते हैं कि हमको अपनी कंट्री को पावरफुल बनाना है, लोगों से नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ रूल निकालेंगे। लोगों को तो बस उस रूल को मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, लोग चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई थी
कि सभी का एक बच्चा होगा, एक से ज्यादा बच्चे करोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, बहुत दिक्कत वाली बात थी, मतलब फाइन लगेगा, बहुत कुछ होगा, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा था। तो ये दिक्कत है वहां पर, समझे। तो लोगों ने अपोज नहीं कर पाए थे लोग। इंडिया में भी इंदिरा गांधी ने सेम चीज की थी। इंदिरा गांधी के टाइम पे इन्होंने जो वो शुरू किया था, नसबंदी शुरू की थी पुरुषों की, है ना, नसबंदी शुरू की थी। इनफैक्ट पैसे दिए जा रहे थे कि जो भी मतलब नसबंदी कराएगा उसको इतने पैसे मिलेंगे, उनको ये मिलेगा, उनको वो मिलेगा, ऐसे करके बहुत मिथ क्रिएट किया गया था। और नसबंदी कराई, पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई जा रही थी, बहुत मतलब अथॉरिटेरियनिज्म आ गई थी। लेकिन क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, नसबंदी आप बोल सकते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, व्हाट डू वी कॉल इट, if I'm not wrong, एक मिनट, let me remember the word, it's been a long time, wait, मुझे लगता है मुझे सर्च ही करना पड़ेगा, दिमाग में नहीं आ रहा अभी। हाँ, वैसे वी कॉल इट एज स्टेरिलाइजेशन और वेस्टोमी, वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी, हाँ वेसेक्टोमी, दैट इज नसबंदी, ठीक है। तो वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी थी, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट की गई थी। इंदिरा गांधी को तो अपोज किया गया था, इस वजह से भी हम देखेंगे कि आगे इंदिरा गांधी की पावर हट जाएगी, तभी तो जनता गवर्नमेंट आई, तभी तो उसके बाद से कांग्रेस का डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, तब से लेकर के डिक्लाइन ही ऐसे शुरू हुआ था, डिक्टेटरशिप आ गई थी। गांधी के टाइम से ही डिक्लाइन शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था, उससे पहले तो कांग्रेस डोमिनेंट थी, सभी लोग सपोर्ट करते थे, ठीक है। प्रेशर कुकर सिंड्रोम बन गया है। हाँ, और दूसरा ये भी है, देखो चाइना में ना अगर लीडर्स चाहते हैं तो अपने मुताबिक रूल निकालेंगे, लोग फॉलो कर सकते, लोगों को फॉलो करना होगा, नहीं फॉलो करेंगे तो उनको पनिशमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी है ही नहीं, लोगों को हक ही नहीं है बोलने का। दूसरा, चाइना में एक और आपको इसी का बताती हूँ अथॉरिटेरियनिज्म का, चाइना में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, चाइना में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए, लीडर्स की पॉलिटिकल विल थी इसलिए ऐसे उठाए गए चाइना में कदम, जिसकी वजह से, ऐसे स्टेप्स की वजह से चाइना और भी ज्यादा एडवांस हो गया। जैसे लैंड रिफॉर्म्स में, चाइना में लैंड रिफॉर्म्स लाने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया। आपको पता है अगर आप चाइना में रहते, आपको, आपके पास घर नहीं है, सपोज आपको अपना पहला घर खरीदना है, फर्स्ट होम, तो उस पे आप अगर लोन लेते हो तो उस लोन का इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा आपको, 2 से 3% इंटरेस्ट रेट, बस 2 to 3%। उसके बाद अगर आप अपना दूसरा होम खरीद रहे हो, मान लो आपने एक खरीद लिया, उसके बाद आपको दूसरा होम भी खरीदना है, तब आपको जो लोन पड़ेगा वो पड़ेगा 6 से 7%। जब आप तीसरी टाइम अपना तीसरा घर खरीद रहे हो सपोज चाइना में, तब आपका जो लोन होगा, लोन जितना भी ले रहे हो उसका 50% इंटरेस्ट होगा, 35 से 50%, इस टाइप का यहाँ पर अथॉरिटेरियनिज्म है। ये भी रीजन है कि चाइना में इसकी वजह से लोगों के पास में सिर्फ इतने ही हैं, और यहाँ पर इतना लोन हाई होता है, लोग तीसरे घर को जाते ही नहीं है, और वो इसी वजह से दूसरे गरीब लोग हैं उनको 2 to 3% पे मिल जाता है। ऐसा भी बोलते हैं रश्मि कि इंडिया नहीं कर सकता है क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में देखो टाइम लगता है, एक पार्टी बोल रही है ये होना चाहिए, दूसरी पार्टी बोलती है नहीं होना चाहिए, आपस में लड़ भिड़ के ही मर जाते हैं, है ना। इनफैक्ट प्रोडक्टिव डिबेट्स नहीं होती हैं लोकसभा में, जूते चप्पल चल रहे होते हैं, एक दूसरे को पीट रहे होते हैं, मतलब मजाक उड़ा रहे होते हैं एक दूसरे का, ठीक है, कोई किसी को पप्पू बोलता है, कोई किसी को मतलब हवा में, मतलब जैसे मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, ये सब तो चलता है। क्या प्रोडक्टिव डिबेट्स होती हैं? नहीं होती। दिस इज द हार्श रियलिटी, व्हाट वी कैन डू। Indira Gandhi was a very strong leader, she was a very strong personality,
बट ये चीजें हैं, समझे आप बात को। तो पहली चीज ये तो खैर हम बात बहुत आगे चले गए, तो अब बात करते हैं बेट एंड ब्लीड, हम बात कर रहे थे, लेट्स कम बैक टू दैट। बेट एंड ब्लीड क्या होता है? इसमें यूएसए को ये बोला मेयर शिमर ने कि यूएसए को जो भी दोनों में से वीक कंट्री होती है उसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे इंडिया और चाइना में कौन वीक है? इंडिया। इस टाइम पे इंडिया वीक है, इकोनॉमी वाइज भी, टेक्नोलॉजी वाइज भी, सब वाइज इंडिया वीक है। तो जो वीक कंट्री होती है यूएसए उसको सपोर्ट करे कि तुम इसको कंटेन करने की कोशिश करो। हमेशा वीक कंट्री को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर स्ट्रांग को सपोर्ट किया यूएसए ने तो स्ट्रांग तो जीत ही जाएगा, आगे जाकर के स्ट्रांग फिर यूएसए को चैलेंज कर सकता है। ये रीजन है। तो यूएसए सपोर्ट नहीं करता स्ट्रांग को, यूएसए वीक को सपोर्ट करता है हमेशा। तो इसमें इंडिया को सपोर्ट करता है यूएसए चाइना के अगेंस्ट में, जिससे क्या होता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए आपस में ही इंडिया चाइना आपस में ही लड़ते रहेंगे, बाउंड्री डिस्प्यूट पे, इन सब चीजों पे लड़ते रहेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोई भी वो नहीं बन पाएगी रीजनल पावर। तो आज के टाइम पे ना चाइना रीजनल पावर है, ना ही इकलौती इंडिया रीजनल पावर है। पोटेंशियल है अभी तक, पोटेंशियल रीजनल पावर्स है। चाइना भी पोटेंशियल रीजनल पावर है, मतलब बन सकता है, इसमें भी पोटेंशियल है, इंडिया में भी पोटेंशियल है, जिससे माइंडसेट ही चेंज। हाँ, इनफैक्ट ये इंसानियत कैसे आएगी? ये आती है ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट से। यूएसए जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है कि चाइना, उइगुर मुस्लिम्स जो रहते हैं जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना में, इनके ऊपर, और तिब्बतियंस जो हैं इनके ऊपर, और जो हांगकांग वाले हैं वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ऐसा बोलता है यूएसए। ह्यूमन राइट्स के नाम पे चाइना बोलता है कि यूएसए चाइना की जो एशिया की सोसाइटी है उसमें अपनी डोमिनेंस जमाना चाहता है, ऐसा भी बोलते हैं ये लोग। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, ह्यूमन राइट्स के नाम पे ये ऐसा माइंडसेट चेंज कर सकता है चाइना के लोगों का, ताकि चाइना डेमोक्रेसी बन जाए, और एक बार चाइना डेमोक्रेसी बन गया तो वो यूएसए के अंडर में ही आ जाएगा, फिर चैलेंज नहीं करेंगे वो लोग। क्योंकि एक ऐसी थ्योरी भी अभी पढ़ेंगे हम आगे इंटरनेशनल रिलेशन में, कि आज तक दो कंट्रीज में जब भी डेमोक्रेसी है, जिन दो कंट्रीज में वॉर्स नहीं हुई है, दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पॉसिबिलिटी मतलब बहुत कम है वॉर होने की, ये कहना है। दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पॉसिबिलिटी कम रहती है। अब आप बोलोगे मैम पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान इंडिया में तो हुई है। नहीं, पाकिस्तान में इन रियलिटी तो देखो आप, ऑन पेपर डेमोक्रेसी दिखेगी, लेकिन इन रियलिटी प्रैक्टिस में मिलिट्री रूल है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, ये है रीजन। तो प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट द केस ऑफ दिस डेमोक्रेसी। क्लियर? सो ऐसा ही सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ भी कर रहा है यूएसए। आपको क्यों लगता है कि यूएसए सऊदी अरेबिया का एलाई क्यों है? व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? यूएसए सऊदी अरेबिया का एलाई क्यों है? क्योंकि ईरान स्ट्रांग है कंपैरेटिवली। ईरान में खैलिफेट रूल था यहाँ से पूरा। तो कंपैरेटिवली हम देखेंगे कि ईरान और सऊदी अरेबिया में ईरान ज़्यादा पावरफुल है। ये भी रीज़न है कि ये सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट। हेलो, ओके, तो हो गया। कंग्रेचुलेशन यार। अच्छा अच्छा, वो प्लीज़ मुझे भेज दे, भेज दे, बिकॉज मुझे ना क्लासेस ख़त्म करने के बाद डायरेक्टली निकलना पड़ेगा। चल ठीक है, ओके।
हाँ, सो सॉरी, आज बहुत हैपनिंग डे है ना, तो इस वजह से बहुत हैप्पी दैट है, और क्लासेस एक के बाद देख के मेरे पास टाइम भी नहीं है। सो के लिए और ईरान और इज़राइल को तोड़ने के लिए, मुस्लिम में भरोसा बनाए रखने के लिए, जैसे इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है था, यस, ऐसे ही सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ईरान को कंटेन करके रखेगा और इससे ईरान रीजनल पावर नहीं बन पाएगा। सऊदी अरेबिया में तो इतना पोटेंशियल ही नहीं है, तो ये आपस में ही लड़ भिड़ करके मर जाएंगे और कोई भी रीजनल पावर नहीं बनेगी। एक बार रीजनल पावर नहीं बनी तो आप ग्लोबल पावर भी नहीं बन सकते फिर। सेम इज द केस विद इंडिया पाकिस्तान। आप याद करो 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान यूएसए का एलाई बन गया था, और इसीलिए यूएसए पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता था, क्योंकि पाकिस्तान वीक था, इंडिया स्ट्रॉन्ग था। इंडिया ने अपना खुद का नाम का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, तो इंडिया एज अ ग्लोबल पावर इमर्ज हो रहा था, लीडर बन रहा था नई जो डीकॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी उनका, जिसके चलते हम देखेंगे कि इंडिया स्ट्रॉन्ग बन गया, एंड इसीलिए यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। ये भी रीजन है, यूएसए वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान। अंडरस्टूड? तो ये वही बेट एंड ब्लीड चल रहा है सब कुछ, कि आप वीक कंट्री को सपोर्ट करो। दूसरा, ये था बेट एंड ब्लीड इनडायरेक्ट में। अब इसके अलावा एक और आता है, विच इज ब्लड लेटिंग। नेक्स्ट इज ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग क्या होता है? दोनों कंट्रीज को सपोर्ट करो जो आपस में लड़ रही हैं, और ये इंश्योर करके रखो कि वो आपस में लड़ती रहें। इससे होगा क्या? दोनों ही एक दूसरे को वीक बना देंगे। जैसे यूएसए ने जब ईरान और इराक की वॉर हुई थी, तो ईरान को भी सपोर्ट किया था और इराक को भी सपोर्ट किया था। यूएसए ने दोनों साइड पे हथियार भेज रहा था। इससे हुआ क्या? आपस में लड़ते रहे, दोनों ही रीजनल पावर नहीं बन पाए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोई भी रीजनल पावर नहीं बन पाया। यूएसए आज भी डोमिनेट है। तो ये चीज मियर शिमर ने बताई थी ऑफेंसिव रियलिज्म में, कि या तो डायरेक्ट एक्शन लो या इनडायरेक्ट एक्शन लो। डिफरेंस बस इतना सा है कि जो केनेथ वॉल्स हैं ये डिफेंस पे काम करते हैं, तो ये सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर है, इज अ सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। और जो मियर शिमर है, ये हमारे पावर मैक्सिमाइजर है, ये पावर पे ध्यान देते हैं। समझ आया? तो ये इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चरल रियलिज्म खत्म होता है यहाँ पर। अब आता है नेक्स्ट स्कूल रियलिज्म का, थर्ड स्कूल, विच इज नियो क्लासिकल रियलिज्म। यानी इसमें जो नियो रियलिज्म है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म को हम नियो रियलिज्म भी बोलते हैं। नियो रियलिज्म, तो एक था स्ट्रक्चरल या नियो रियलिज्म और एक था क्लासिकल। अब दोनों को मिक्स कर दो तो बन जाता है नियो क्लासिकल रियलिज्म। न्यू क्लासिकल रियलिज्म में ये डिफरेंस है स्ट्रक्चरल रियलिज्म से, कि इसमें दोनों को लिया जाएगा। स्ट्रक्चर पे भी एम्फेसिस होता है कि स्ट्रक्चर क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, एनआरकी। एनआरकी के बेसिस पे भी पावर इंक्रीज करो, और साथ में एक्टर भी इम्पोर्टेंट होता है। देखो, एक्टर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे मनमोहन सिंह थे, पीसफुल थे, वो क्या डिसीजन लिया उन्होंने, कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट में, कभी भी कोई एग्रेसिव स्टैंस नहीं लिया। ऐसे ही
मोदी बहुत एग्रेसिव है, एग्रेसिव स्टैंस लिया। उरी अटैक के बाद में मोदी ने पुलवामा अटैक के बाद में मोदी ने बहुत सारे एक्शंस लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट में। हमने देखा कि क्या क्या हुआ था, स्ट्राइक्स हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, है ना, ये हमने चीजें देखी। सो एक्टर पे भी डिपेंड करता है, यानी दैट मीन्स इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्टर। नाउ एक्टर पे भी डिपेंड करेगा। ये है नियो क्लासिकल रियलिज्म। यानी ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डेफिनेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, दूसरी कंट्रीज कैसे बिहेव कर रही हैं, क्योंकि कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है, तो ये एक्टर की चॉइसेस को कंस्ट्रेन कर देता है। मतलब एक्टर के पास में, जो लीडर होता है उसके पास में ज्यादा चॉइस नहीं होती अपना डिसीजन को लेने की। मतलब एक लीडर ये भी जैसे मोदी है, मोदी शुरुआत में जब पावर में आए थे तो मोदी ने बोला था कि हम वो करेंगे, क्या नाम है, पाकिस्तान के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस बना करके रखेंगे हम। लेकिन हम देखते हैं कि पावर में आने के बाद में पाकिस्तान ने तो वैसा नहीं किया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत अलग तरीके से काम किया। इसीलिए बाद में मोदी ने एग्रेसिव स्टांस लिया, क्योंकि चॉइस ही नहीं थी मोदी के पास में। मोदी चाहते तो पाकिस्तान के साथ बढ़िया रिलेशनशिप रख सकते थे, रखना भी चाहते थे इनफैक्ट, लेकिन चॉइस ही नहीं बची उनके पास। तो स्ट्रक्चर चॉइस नहीं देता एक्टर को फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, इसीलिए भी कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है हमें। लेकिन हम साथ ही साथ एक्टर का रोल नहीं भूल सकते, क्योंकि एक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे नेहरू अगर पॉलिसी बनाएंगे या इंदिरा गांधी पॉलिसी बनाएंगी तो वो डिफरेंट होगी, कॉन्टिन्यूटी रहेगी। लेकिन एक्टर जब होता है, किस टाइप का एक्टर है, कैसा डिसीजन ले रहा है। जैसे मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार में कभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में ऐसे कोई सर्जिकल स्ट्राइक की हो। एक्टर पे डिपेंड करता है, मोदी ने किया ना, तो ये चेंज को भी रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए फॉरेन पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी भी बनी रहती है, कुछ चीजें जो हमेशा से फॉलो की जाएंगी, और साथ ही साथ चेंज भी आता रहता है। वो डिपेंड करता है लीडर पे, कि लीडर कैसा है, लीडर का क्या सोच है, उस हिसाब से। तो यानी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मैटर करते हैं। आए समझ। अब आता है फोर्थ स्कूल। इसमें तो जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं फरीद जाकरिया वगैरह हैं। आता है लास्ट स्कूल ऑफ रियलिज्म, विच इज पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियल को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं। पोस्ट कॉलोनीज को मतलब जो पहले कॉलोनीज हुआ करती थी, अब वो डीकॉलोनाइज हो चुकी हैं। अब वो कॉलोनीज नहीं है, इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड कैटेगरी में आती है। इंडिया भी इसी में आता है, क्योंकि इंडिया पोस्ट कॉलोनी है ना, दैट्स व्हाई। तो थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म इसका दूसरा नाम है। इसमें हमारे जो स्कॉलर्स हैं, एक है मोहम्मद आयूब और दूसरे हमारे स्कॉलर हैं इसमें हमारे अमिताभ आचार्य, अमिताभ आचार्य, अमिताभ आचार्य एंड मोहम्मद आयूब, ये दोनों स्कॉलर्स हैं हमारे। इनका कहना है कि देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं, वो सभी यूरोप को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं, यूरोपियन कंट्रीज को ध्यान में रख के। तो ये सभी उनकी तरफ बायस्ड है, यूरोप की तरफ बायस्ड है, यूरोपियन कंट्री के पर्सपेक्टिव से बनाई गई हैं। कॉलोनीज जो अब डीकोलोनाइज हो चुकी है, उनके पर्सपेक्टिव से नहीं बनाई गई हैं। तो सोल्यूशन जितने बताए गए हैं, वो भी उनके पर्सपेक्टिव से नहीं बताए गए हैं, जो नई कंट्रीज उभर के आई हैं। सोल्यूशन पुरानी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके हिसाब से बताए गए हैं। इसीलिए ये बोलते हैं कि हम हमारे यहाँ पे जो एग्जिस्ट करता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, मैंने आपको बताया था, ये जो स्कॉलर्स हैं ये बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि स्टेट्स के बीच में सिक्योरिटी डायलेमा होता है, दो स्टेट्स के बीच में सिक्योरिटी डायलेमा होता है। इसीलिए हमेशा
दो स्टेट्स आपस में पावर को इंक्रीज करते रहेंगे, अलायंसेस बनाते रहेंगे। लेकिन इन दोनों स्कॉलर्स का कहना है, जो भी पोस्ट कॉलोनियलिस्ट होते हैं या थर्ड वर्ल्ड रियलिज्म से बिलोंग करते हैं, कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जैसे इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका या अफ्रीका की कोई भी कंट्री, ये नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, या चाइना, ऐसी कंट्रीज। इन कंट्रीज में क्या होता है, यहाँ पर सिक्योरिटी डायलेमा नहीं होता, यहाँ पे होता है इनसिक्योरिटी डायलेमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस क्या है? सिक्योरिटी डायलेमा का मतलब है कि आपको अपनी कंट्री के लिए सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है कि दूसरी कंट्री आप पे अटैक ना कर। इनसिक्योरिटी डायलेमा का मतलब है कि दूसरी कंट्री के बारे में तो आप बाद में सोचोगे कि हम पे अटैक करेगी, अपनी खुद की ही कंट्री में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वहीं से अटैक आते हैं। जैसे इंडिया के केस में नक्सलाइट्स हो गए, ये जो नक्सल अटैक्स होते हैं, इंडिया में इंसर्जेंसी है जिसकी वजह से जब भी हम म्यांमार के साथ में अपना रिलेशन आज देखते हैं, 2015 से इंडिया और म्यांमार की गवर्नमेंट आपस में कोऑपरेट कर रही है इस इंसर्जेंसी को हटाने के लिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी डायलेमा नहीं है, यहाँ पे इनसिक्योरिटी डायलेमा है। अपनी इनसिक्योरिटीज को सॉल्व करने के लिए दूसरी कंट्रीज के साथ में कोऑपरेट किया जा रहा है। जैसे हमने बहुत सारे अपने मिलिट्री ऑपरेशंस म्यांमार गवर्नमेंट की हेल्प से म्यांमार की जंगलों में अपने जो सिपाही हैं, अपने जो सोल्जर्स हैं, उनको भेजा, ताकि वो जो इंसर्जेंट्स हैं जो इंडिया में अटैक करते हैं, वहां जाकर के छुप जाते हैं म्यांमार के जंगल में, उनको वहां से खदेड़ सके, उनको वहां से रिमूव कर सके। अंडरस्टूड? तो हमारी खुद की इनसिक्योरिटी इतनी है, सिक्योरिटी से रिलेटेड हमें इशू नहीं है, हमें इनसिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है। पाकिस्तान से आपको क्या लगता है, हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है पाकिस्तान से? नहीं, हमें इनसिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है। पाकिस्तान जो टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, नेपाल के थ्रू यहाँ से आ जाते हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उसके साथ में डील करना है हमें। तो हमें पाकिस्तान के साथ में इसीलिए भी हम चाहते हैं कि कोऑपरेट करें, हम फ्रेंडली रिलेशंस बने, ताकि ये चीज हटाई जा सके। तो यहाँ पे पावर मैक्सिमाइज की कोई बात नहीं है, यहाँ पर इनसिक्योरिटी डायलेमा एग्जिस्ट कर रहा है। आया समझ? इन कंट्रीज में इनसिक्योरिटी से जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल चैलेंजेस ज्यादा नहीं है। ये हमारा लास्ट स्कूल था रियलिज्म का। इसके बाद हमारा जो रियलिज्म का टॉपिक है वो फिनिश हो चुका है। बस इसमें अब एक चीज बची है, वो है क्रिटिसिज्म, जिसको अभी हम कवर करेंगे। पहले हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। I'll take a 5 minutes break so that I can have my breakfast. ठीक है, बस 5 मिनट दीजिए मुझको। आई एम सॉरी, अभी आज एक दो दिन तक अभी ऐसा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद में कंटिन्यू रहेगा, फिर आगे से मैं इसे इतने ब्रेक्स नहीं लूँगी। जस्ट गिव मी अ 5 मिनट ब्रेक, ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इन द मीन टाइम अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगती है, कोई डाउट आ रहा है, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं, कहाँ पर क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता है कि वहाँ क्या हुआ था, तो आप किसी और से पूछ सकते हैं। यू कैन डिस्कस और गूगल कर सकते हैं आप इन सभी चीज़ों के बारे में। मैं आकर के क्रिटिसिज्म ख़त्म करूँगी, और क्रिटिसिज्म फिनिश करते ही हमारी आज की क्लास ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा क्रिटिसिज्म बहुत छोटा बचा है, हार्डली 10 मिनट लगेंगे मुझे कवर करने में, 10 से 15 मिनट। एंड फिर आगे हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में आइडियलिस्ट स्कूल, जो लिबरल वाला स्कूल, ठीक है। सो गिव मी 5 मिनट्स।
Yes, finally I'm back. Okay, so continue करें. You guys are there? Anyone there? Okay, okay. चलिए. So अब क्या कवर करना है? राघव, आप इंग्लिश मीडियम से लिखेंगे ना? You are from South? Okay, you are from South India, right? Hmm. So Raghav, why aren't you in my batch number 8 sessions? Batch number 8 is totally purely in English. I'm starting with batch number 8. I mean, at least for the better retention and everything, because that is in. Okay, don't worry. Finish this course by December. Okay, that's good. But if you have to revise any topic, na Raghav, do not revise from here. Do the revision from batch number 8. Anytime in future, whenever you are planning to revise from the batch 8 videos. Okay? You watch batch 6, that is good. But batch 8 is going to be one step ahead of batch 8, a batch 6. Because batch 8 will have not only the class note, उसमें अलग तरीके से एकदम और डेप्थ में हम कर रहे हैं. Because I'm planning to give paper next year. तो उसके लिए I'm also you know looking for other sources. मैं इधर उधर से काफ़ी और पढ़ाई करके थोड़ा कुछ add up कर रही हूँ points. तो उसमें थोड़ा और rich analysis आपको मिलेगा. So rather than watching batch 6 videos, it is better to go for batch 8 videos. ठीक है? Follow that. अभी तक तो वैसे भी 6-7 sessions हुए हैं. You can watch those 6-7 sessions so far what I have taken in batch 8. बैच 7 में भी बता देना. हाँ हाँ हाँ, एक दो पॉइंट ज़्यादा ही हैं, मैं बता दूंगी, टेंशन मत लीजिए. अलग से उसका एडिशन रहेगा तो मैं बता दूंगी. कभी क्लासेस लेंगे तो उसमें बता दूंगी. जैसे राजीव भार्गव का एक व्यू है, ऐसी चीजें थोड़ी एडेड अप हैं, और भी एडेड हैं, हम देखेंगे आगे. चलिए, क्रिटिसिज्म कवर करना है अगले 10 मिनट में, 9 मिनट में ये फिनिश हो जाएगा हमारा. लेट अस कवर दैट. तो हाँ, क्रिटिसिज्म में पहले आएगा हमारा कि कौन क्रिटिसाइज करता है इस स्कूल को. स्पेशली स्ट्रक्चरल रियलिज्म को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है. स्ट्रक्चरल रियलिज्म से मेरा मतलब है कि मियर शिमर और केनेथ वॉल्ट्स का जो आइडिया है उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है. कौन कौन क्रिटिसाइज करते हैं? सबसे पहले तो एक तो लिबरल स्कूल खुद ही क्रिटिसाइज करेगा. लिबरल स्कूल, वो स्कूल जो वुड्रो विल्सन के, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके आइडिया में रहा. क्योंकि जो रियलिस्ट होते हैं ना, वो बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं हर चीज को लेके, और हमेशा इसलिए बोलते हैं कि वॉर को प्रिपेयर करके रखो, है ना. और जबकि लिबरल्स जो हैं ये ऑप्टिमिस्टिक हैं. ऑप्टिमिस्टिक मतलब हमेशा अच्छा अच्छा सोचते हैं, एकदम कोऑपरेशन का सोचते हैं कि आपस में जो स्टेट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उनकी पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं आपस में, वो कोऑपरेट भी कर सकते हैं. आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के जरिए कुछ ऐसे आइडियाज अप्लाई करो दोनों कंट्रीज के बीच में कि आप उससे अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हो. ठीक है, आइडिया को थोड़ा चेंज कर सकते हो, ऐसा मानना है इसमें. आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए. तो लिबरल्स का ये मानना है कि अगर हम, इफ वी हैव इनोवेटिव आइडियाज अगर हम अप्लाई करते हैं, अगर कोई भी इनोवेटिव आइडिया, तो आप चेंज ला सकते हो, आपस में स्टेट को कोऑपरेट करा सकते हो. जैसे कि हम देखेंगे कि जॉन लॉक है. जॉन लॉक खुद ऑप्टिमिस्टिक थे. जॉन लॉक ने ह्यूमन नेचर को एक बहुत पॉजिटिव वे में देखा, और उसके चलते उन्होंने ये बोला कि मैन अपना भी ख्याल रखेगा और दूसरों का भी ख्याल रखेगा. ऐसे आइडिया को, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट करके जॉन लॉक ने यूएसए के केस में लिबरलिज्म को जब एस्टैब्लिश किया, तो यूएसए दूसरी कंट्रीज के साथ में मिलकर के काम कर रहा है. इसीलिए आपने कभी सुना चाइना किसी कंट्री के साथ में मिलकर काम कर रहा है? नहीं करता है.
चाइना बहुत कम करता है किसी कंट्री के साथ में मिलकर के काम, है ना। पाकिस्तान के साथ में थोड़ा नेक्सस है, ये साउथ अफ्रीका के साथ में है, लेकिन वो बहुत छोटी कंट्रीज हैं। क्या वो चाइना को इतना फायदा करेगा जिस हिसाब से यूएसए कर रहा है? चाइना पाकिस्तान या श्रीलंका को इसलिए नहीं कर रहा है कि वो कोऑपरेट करना चाहता है इनके साथ में। चाइना यहाँ पर डेप्थ ट्रैप क्रिएट कर रहा है, इनका फायदा उठा रहा है चाइना। यूएसए ऐसा बताता है। अब ये तो फिर आप वो भी कर सकते हो कि यूएसए भी तो फायदा उठा रहा है, ये अगेन डिबेटेबल चीज है। लेकिन कहने का सिर्फ जरिया ये है कि किसने पॉजिटिव व्यू ज्यादा लिया। यहाँ पर लिबरल्स जो है वो पॉजिटिव व्यू लेकर के बताते हैं कि हम जो नेचर है स्टेट का उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे तो हम कोऑपरेट कर सकते हैं आपस में, सभी स्टेट्स लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले जो रियलिज्म में बोलते हैं कि पावर को इंक्रीज करो क्योंकि हर टाइम पे वॉर हो सकती है, तो वो गलत है। तो इसमें आप नाम ले सकते हैं जॉन लॉक का। जॉन लॉक का एग्जाम्पल दे करके, इनका नाम लेकर के बोलिए कि जॉन लॉक जैसे जो स्कॉलर्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक चीजें बताते हैं। ऐसी इमैन के रख सकते हैं परमानेंट पीस, जो हम परमानेंट रहे, कभी चेंज ना हो यूरोप के बीच में। क्योंकि आपको पता है यूरोपियन जो कंट्रीज थी आपस में कितना लड़ती थी, 30 साल तक लगातार वॉर चली, उसके बाद भी वॉर होती रही। वर्ल्ड वॉर यूरोप में ही हुई, यहीं से स्टार्ट हुई। तो इन्होंने अपना आइडिया दिया, देखो कि मोनार्की की जगह पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तब पीस आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जहां पर डेमोक्रेसी होती है वहां पर लोग डिसीजन लेते हैं और लोगों के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं होता वॉर डिक्लेयर करने का। एक लीडर कर सकता है, लोग कभी नहीं करेंगे। लोगों को अपनी जिंदगी से मतलब होता है, लोगों को वॉर थोड़ी ना करनी। अगर आपसे आज पूछा जाए कि यू नो वॉर करनी है पाकिस्तान के साथ में, क्या आप उसके सपोर्ट में होंगे पाकिस्तान के साथ में लड़ाई करने के? नहीं। हमारा हमेशा पहला व्यू क्या जाएगा कि यार फ्रेंडली तरीके से करो। पाकिस्तान के साथ में अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट बना करके अच्छे तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। आया समझ? तो कहने का क्या मतलब है इसमें कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ऐसा इमैनुअल कांत ने बोला। आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा। साथ में इमैनुअल कांत ने बोला फ्री ट्रेड। एक तो फ्री ट्रेड की बात की और डेमोक्रेसी की, इसके थ्रू हम फ्री ट्रेड और डेमोक्रेसी कि इसके थ्रू हम, क्या दिक्कत है, बार बार रिफ्रेश हो रहा है, सॉरी। नेक्स्ट इज रिचर्ड कॉब्डेन। रिचर्ड कॉब्डेन का कहना है कि सभी देशों को अपने देशों से पॉलिटिशियंस जो हैं ये, इनको निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। अगर आपको पीस रखना है, तो लिबरल स्कूल से बिलोंग करते हैं ये सभी लिबरल स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं। जॉन लॉक, इमैनुअल कांत, रिचर्ड कॉब्डेन। रिचर्ड कॉब्डेन का कहना है कीप द पॉलिटिशियंस आउट। अगर पॉलिटिशियंस नहीं होंगे तो लोग तो आपस में हमेशा पीस बना के रखेंगे, तो इससे वॉर ही नहीं होगी। तो पावर इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। इतना तो पैसा वेस्ट होता है, सोचो पावर इंक्रीज करने में, आर्म्स और एमिनेशंस में, डिफेंस के हम इतने बड़े बड़े फाइटर जेट्स खरीदते हैं जबकि आपकी कंट्री में गरीबी इतनी है, पॉवर्टी लेवल इतना हाई है, इतने ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और इतने गरीब है, दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है और माल न्यूट्रिशन है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, और उस मामले में भी आप कितने लाखों करोड़ के आप वो खरीदते हो, फाइटर जेट्स, डिफेंस मिसाइल्स, आप स्पेस एक्सप्लोर करते हो, ये सब चीजें करते हो, स्पेस फोर्स तक आ गई है। तो ये सभी टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो पैसा सरकार लगा सकती है गरीबों की भलाई में, लेकिन पैसा कहाँ जाता है? इन सब चीजों में। तो पॉलिटिशियंस को बाहर रखो, लोग पीसफुल आपस में ही पीस रख लेंगे तो ये डिफेंस विफेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ऐसे ही एक और थिंकर है नॉर्मन एंजल। इन्होंने भी एक बुक लिखी है द ग्रेट इल्यूजन, कि सबसे बड़ा इल्यूजन यानी आपके दिमाग में ये चीज गलत है कि वॉर से फायदा होता है। लड़ाई करने से किसी का फायदा नहीं होता। वॉर से फायदा उनका भी नहीं होता जो लोग जीतते हैं, उनका भी तो पैसा लगता है। यूएसए ने अगर कोई वॉर करी तो टैक्स पेयर्स का पैसा लगा, वही पैसा आप अपने देश में लगा सकते हैं। तो इसीलिए वॉर मत करो, ऑल्टरनेटिव ढूंढो वॉर का। पीस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के थ्रू कर सकते हो। ऐसे ही वुड्रो विल्सन भी डाल सकते हो इसमें, क्योंकि वुड्रो विल्सन ने अपनी 14 पॉइंट स्पीच में भी यही बोला था। तो आप इसमें जब दोगे अपना क्रिटिसिज्म तो ये दे सकते हो क्रिटिसिज्म। क्लियर? तो ये क्रिटिसिज्म है इसका। अब आगे हम कल आइडियलिज्म शुरू करेंगे, लिबरल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुरू करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। ये आज खत्म हो गया हमारा एक स्कूल, कल एक और स्कूल खत्म कर देंगे, उसके बाद मार्क्सिस्ट फंक्शनलिस्ट सिस्टम थ्योरी। ये तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ये अलग से फिनिश कर